Hello everyone, welcome to my channel. I am Rakhi Nandal and today I am going to tell you that CBSE has revised our syllabus for the current year and some topics has been deleted from every chapter, like particular type of questions has been deleted and some particular topics. So as we were discussing our chapter 6, so there are two theorems that has been deleted from here, but it has been mentioned in our circular that the proof of these two theorems has been removed from our syllabus, but it's not very clear that questions will be there or not will be there. But according to their statement, the thing is we will leave only proof of these two theorems. Rest the questions we will do because they may be asked in the exam, and from the chapter triangle it's a very lengthy chapter. Moreover, some students face difficulty in that because in the beginning I told you why students face difficulty. So today I am going to tell you which theorem you have to leave and which questions you have to do. So till 6.3 there is no change. You have to do each theorem and all the examples and questions. And before 6.4 there is one theorem, area of similar triangle. So this theorem is there. The ratio of areas of two similar triangles is equal to the square of ratio of their corresponding side. So in our circular, proof of this theorem is removed. आपको ये थ्योरम नहीं करना है, प्रूफ नहीं करना है इस थ्योरम का, बट ये मेंशन नहीं है आपको कि क्वेश्चन भी नहीं करना है. सो इस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस वी हैव टू डू. Only the proof of this theorem you have to leave. In our previous videos, we have discussed BPT, converse of BPT, some more theorems. Some students were asking, मैम theorem भी आती है क्या एग्जाम में? Yes, बच्चे theorems भी आती हैं, उनके direct proof भी आते हैं. So इस चैप्टर से पर्टिकुलर बात ये है आपके लिए कि इस theorem का proof हटा दिया गया है. Otherwise from chapter triangle there is no such relaxation. सिर्फ दो theorem के proof हटाए गए हैं आपको. In other chapters there are some major changes, so you can get the idea कि कितना important chapter है ये आपके लिए. So let's discuss about this theorem. Proof we will not do, but I will tell you the result that will be used in further question. तो result कैसे लिखोगे आप? The ratio of area of two similar triangles. आपके पास दो similar triangles हैं. Okay, these are two similar triangles. एक ट्रायंगल को कह दिया ABC, एक ट्रायंगल को कह दिया हमने PQR. फ्रॉम दीज टू ट्रायंगल, इन ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो दूसरी ट्रायंगल के साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये रेशियो क्या है आपके? इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड. इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है. इसके भी इक्वल है. कोरस्पॉन्डिंग साइड्स तीनों ही होंगी आपकी. BC अपॉन QR के भी इक्वल है और AC अपॉन PR के भी इक्वल है. सो ये थ्योरम है आपके पास. इन प्रीवियस ईयर्स हम इसका प्रूफ भी करते थे, आपके NCERT में है. इस बार नहीं आएगा तो हम डायरेक्ट सिर्फ रिजल्ट याद कर लेते हैं. यहाँ से ज्यादा टफ नहीं है. दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा हमेशा. कौन सी भी एक साइड, कौन सा भी एक चीज आप ले लो, तीनों ही आपके क्या होंगे? इक्वल. दो वी नो दैट इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आपको पता है ये इक्वल कैसे होगा? ये तीनों चीजें आपकी इक्वल होती हैं. आपको पता है ट्राइंगल्स आर सिमिलर व्हेन साइड्स आर इन प्रोपोर्शन. सो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं आपको याद करने के लिए. सिर्फ आपको ये याद करना है कि साइड्स के रेशियो का स्क्वायर एरिया के रेशियो के इक्वल होगा. सो वेरी इजी. इसका प्रूफ नहीं करेंगे. मूविंग टुवर्ड्स डायरेक्ट क्वेश्चन. थ्योरम 6.6, ये आपको इस पे आप क्रॉस लगा दीजिए अपनी NCERT बुक में. ये आपके एग्जाम में नहीं आएगी, बट इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं. सो चलिए क्वेश्चन करते हैं हम. फ्रॉम एक्सरसाइज 6.1, first question is you are given two similar triangles. Triangle ABC is similar to triangle PQR. ये आपको स्टेटमेंट याद कर लेनी है. इस तरह की स्टेटमेंट भी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. चलिए
गिवन है आपको ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। तो देखो पहली कंडीशन है इस थ्योरम के लिए कि इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। और एरिया दिया हुआ है आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसका एरिया आपको गिवन है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। यू नो द यूनिट, एरिया की यूनिट है तो स्क्वायर में आएगी आपके पास। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR गिवन है, यहाँ पे एक्चुअली एरिया DEF का कोई भी नाम हो सकता है आपके पास। आई एम जस्ट टेलिंग यू द मेथड, इस पे बेस्ड आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, तो वो डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे, फिलअप्स में आ सकता है, ये आपके पास ऑप्शन में पूछा जा सकता है, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ट्राइंगल PQR आपको गिवन है, इसका एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछा गया है इफ E दिस इज दिस, चलो एक साइड आपको दे दी है, QR साइड दे दिया है आपको 15.4, ये आपको दे दिया है, आपको निकालना है BC साइड। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो देखिए आपके पास 3 डेटा आर गिवन टू यू। आपको पता है क्या, इसके बेसिस पे आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे आपको बताया था मैंने कोरस्पोंडेंसी, हाउ यू हैव टू चूज, जिसके साथ आप जोन से साइड लोगे वही आपको कोरस्पोंडिंग में लेनी है। तो ये किसके इक्वल होगा, AB अपॉन PQ का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, BC अपॉन QR का स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन PR का स्क्वायर। ये आपको लिखना, प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से बताया गया आपको। तो चलिए गिवन डाटा को पुट करते हैं यहाँ से। एक तो ये चीज है आपके पास, सेकंड इज BC एंड QR, इसका रिलेशन आपने लिख ही लिया है। एरिया लिख दीजिए ट्राइंगल का 64, PQR का 121 इज इक्वल टू, BC साइड आपने निकालनी है, लेट बी एज इट इज, QR की वैल्यू पुट कर दीजिए 15.4, इसका स्क्वायर। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं कैसे, BC स्क्वायर अपॉन 15.4 इंटू 15.4, इसको सॉल्व लिया तो ऐसे कर दीजिए। अदरवाइज देयर इज वन मोर ऑप्शन, क्या करो आप इधर आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, वो भी कर सकते हैं, यानी कि इसको सिंपली एक, दिस इज द मेथड कि आप इसको फिर सॉल्व करके फिर स्क्वायर रूट लो। अदर वन इज क्या करो, यहां से लिख दो BC अपॉन 15.4, इसका स्क्वायर किसके इक्वल है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, यस लिख सकते हो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो BC अपॉन 15.4 इज इक्वल टू 8/11। सो BC की वैल्यू आ गई 8 अपॉन 11 इंटू 15.4। यहाँ से आप डेसिमल रिमूव कर दीजिए, अपॉन 10, 11 से डायरेक्ट कट हो जाएगा, 11 1 जा 11 और 14 के ऊपर। सो डायरेक्ट आप यहाँ से मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ गया आपके पास, मल्टीप्लाई करके आप डेसिमल पुट कर दीजिए। सो 14 8 जा हो गया आपके पास 112। सो आपके पास वैल्यू क्या आ गई यहाँ से अपॉन 10, यानी कि BC आपने निकाल दिया 112/10, डेसिमल फॉर्म में लिख दीजिए 11.2 सेंटीमीटर। डोंट फॉरगेट टू पुट यूनिट हियर। सो ये आपका 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं आपसे। सो दिस इज वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट विल बी मोस्ट प्रोबेबली आस्क्ड इन द एग्जाम। सो गो थ्रू दिस वेराइटी, आपको फिलअप्स वगैरह में करके इसको देयर विल बी सम मॉडिफिकेशन, आपको पैटर्न पता चल गया। नाउ यू कैन डू by your own. Now moving towards our question number 2. You may pause the video to write it down. So here you are given a trapezium ABCD where AB is parallel to DC and AB is equal to twice of CD. This is given. You are asked to find area of triangle AOB upon area of triangle COD. So we have done this trapezium kind of question in many ways. हमने BPT में भी किया था, फिर हमने इसको हमारी थर्ड एक्सरसाइज में भी इसे यूज किया था, जहाँ पे हमारे पास सिमिलरिटी वाला कंसेप्ट आया था। तो हमने दोनों में किया है। अब यहाँ पे जो अभी अभी हमने थ्योरम पढ़ी है उसको कैसे यूज करेंगे देखिए। अब एरिया में भी यूज हो रहा है, सेम ट्रेपीजियम वाला क्वेश्चन हर वेराइटी में आ रहा है आपके पास। सो वहां से एक चीज हमें हमेशा दी होती है, दिस AB इज पैरेलल टू
DC. ठीक है, दिस इज गिवन टू यू AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD. सो बिफोर दैट हमने क्या किया था, जो हमें फाइंड करना होता था या प्रूव करना होता था, हम उन्हीं दो ट्राइंगल्स को चूज करते हैं, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD. AOB COD ये दो ट्राइंगल्स हैं, ABCD के पैरेलल है. सो नेम इट एंगल 1, ये एंगल 2, इधर से इसको कह देती हूँ एंगल 3, एंगल 4, एक ये वर्टिकली अपोजिट है. सो यू गॉट माई पॉइंट. मैं क्या कहना चाहती हूँ, यहाँ से एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है. यू नो वाई, लिख सकते हो आप रीजन. एंगल 3 और एंगल 4 आपके पास इक्वल है. रीजन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. अब वर्टिकली अपोजिट की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज वी नो एंगल एंगल प्रॉपर्टी आपके पास है. तो यहीं से हम कर देंगे बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. क्या लिख दोगे आप, ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD. समझ आया. देखो ये एरिया वाली थ्योरम अप्लाई करने के लिए वी नीड टू हैव ट्राइंगल्स टू बी सिमिलर. तो पहले हमें सिमिलरिटी प्रूव करनी है. ट्राइंगल सिमिलर हो गए. चलिए, नाउ इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो एरिया का रेशो साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD. चलिए करते हैं, देखना है आपने कैसे लिखोगे. AOB, अब देखो साइड्स के आपके पास यहाँ पे क्या गिवन था, साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल. तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हमें लिखनी है. तो AOB से मैंने साइड लिया है AB. ठीक है, COD से साइड कौन सा आएगा, CD. ठीक है, समझ आया. कोरस्पॉन्डेंस से कर, अब इसके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है बाय थ्योरम. चलिए इज इक्वल टू, अब देखो अब यहाँ पे एक चीज गिवन थी आपको, AB इज इक्वल टू 2CD. इस चीज को यूज करना है आपने. तो यहाँ से यू कैन पुट AB को आप क्या लिख सकते हो, 2CD. सो 2CD अपॉन CD का स्क्वायर. समझ आया क्या किया, सिंपली AB की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे. CD से CD कैंसिल. सो 2 अपॉन 1, देखो स्टिल स्क्वायर इज देयर. तो स्क्वायर को सॉल्व करोगे 4 अपॉन 1, यानी रेशियो क्या आ गई आपके पास, 4:1. दिस इज योर आंसर. सेकेंडली दिस इज रेशियो. तो आपको पता है व्हेन यू राइट रेशियो, रेशियो इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम यूनिट्स, क्योंकि जो भी यूनिट होती है वो आपकी कैंसिल आउट हो जाती है. तो रेशियो आपकी हमेशा विदाउट यूनिट होती है. सो दिस इज योर 4:1. स्क्वायर करना मत भूल. द मेजर मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स डू इज, वो या तो स्क्वायर करना भूल जाते हैं या फिर वो पहले स्क्वायर करके कुछ यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं. इट्स वेरी सिंपल. डू द रेशियो फर्स्ट, देन डू द squaring. You may pause the video to write it down. So here figure is given to you and it is mentioned that ABC and DBC are triangles on the same base. So यहाँ पे common base क्या है, BC. देखो BC आपकी दोनों triangles में है. So look at the figure ABC. ये ABC triangle है, base BC है, इधर से है DBC. So this diagonal, अगर if I consider this BC diagonal, तो एक ट्राइंगल BC के ऊपर है, एक ट्राइंगल नीचे है आपके पास. ये गिवन है आपको शो करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC. इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो इक्वल है AO अपॉन DO. AO अपॉन DO, यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, AO अपॉन DO. चलिए, सो हेयर आई विल डू सम कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन क्या करनी है एंड क्यों करनी है. देखो वाई दिस थिंग विल कम इन योर माइंड कि ऐसे ही उठा के कंस्ट्रक्शन कर दो, क्यों कर दो, पहले सोचो आप इस चीज को. सो देखिए यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स में साइड ACBD देयर इज नो रिलेशन. ना ये ट्रेपीजियम है, ना साइड पैरेलल है, ना कोई 90 डिग्री का एंगल है. सो आई कांट फाइंड एनी रिलेशन विद विच आई कैन प्रूव एनी सिमिलैरिटी. अगर जब तक सिमिलैरिटी प्रूव नहीं होगी कोई थ्योरम आपकी नहीं लगा पाओगे आप. सो यहाँ से हमने कंस्ट्रक्शन क्यों करना पड़ा है, देखो वी आर ट्राइंग टू फाइंड द एरिया. सो क्या कंस्ट्रक्शन करूं मैं, इस पॉइंट से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर देती हूँ. लेट्स नेम इट एज P. सिमिलरली D पॉइंट से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर देती हूँ, नेम इट एज Q. सो कंस्ट्रक्शन आपने किया है, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर, AP को परपेंडिकुलर किया है आपने
OB साइड पे, OB कह लो, BC कह लो, कौन सी साइड पे भी कह सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो पूरी लाइन पे भी परपेंडिकुलर होता है आपके पास। और इधर से आपने DQ को परपेंडिकुलर प्लॉट किया है यहाँ पे। अब देखिए फर्स्ट थिंग क्या करो आप, ये जो आपको यहाँ से परपेंडिकुलर प्लॉट किए हैं, तो देखो ये AP परपेंडिकुलर है आपकी ट्राइंगल ABC में, तो हम बेसिक फार्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, यही निकालना है आपको। इसमें जैसे ही परपेंडिकुलर प्लॉट क्यों किया मैंने, क्योंकि मेरे पास फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, सबको पता है आपको ये। अब बेस क्या है ट्राइंगल का, BC। अब हाइट क्या होती है, हाइट होती है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वर्टेक्स से, तो बेस के अपोजिट वर्टेक्स है A, यहाँ से परपेंडिकुलर। अब देखो ट्राइंगल ABC में एक ही परपेंडिकुलर है आपके पास, वो है AP। तो समझ आया ये क्या किया, सिंपल फार्मूला पुट किया है। अब DBC, DBC नीचे वाली इस वाली ट्राइंगल में बेस क्या है आपका, अगेन BC। देखो जब गिवन है जो चीज उसका तो यूज करेंगे ना हम ऑन द सेम बेस, यानी कि BC कॉमन बेस है। अब यहाँ से हाइट क्या है, DQ। समझ आया क्या किया यहाँ पे, सिंपली मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला पुट किया, ये कैंसिल हो गया, BC कैंसिल हो गया, तो यहाँ से किसकी इक्वल आया एरिया का रेशियो, AB अपॉन DQ। लेट इट नेम इज इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ हो गया, बट मुझे तो AO अपॉन DO के इक्वल प्रूव करना है। अब सिमिलरिटी पे मूव करते हैं, कौन सी ट्राइंगल लूं जिसमें मेरे पास AP भी आ जाए और AO भी आ जाए। वेरी क्लियर, आपको पता है दो साइड्स में से तीनों को ज्वाइन कर लो, AO AP, यानी कि ट्राइंगल बनेगी APO, ये वाली ट्राइंगल। उधर से DO और DQ, वो ट्राइंगल जिसमें दोनों साइड आ जाए, ये वाली ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल APO एंड DQO, ये दो ट्राइंगल्स मैं लेती हूँ, तो इनमें एंगल APO इज इक्वल टू एंगल DQO। वाई दोनों ही क्या है आपके पास 90 डिग्री, आपने कंस्ट्रक्शन से किया है। सेकेंड लिख दो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो बाय एंगल सिमिलैरिटी, दो एंगल इक्वल प्रूव हो गए तो ट्राइंगल्स क्या होगी आपकी, सिमिलर। सो ट्राइंगल APO सिमिलर है ट्राइंगल DQO। कोरस्पोंडेंसी को आपने मेंटेन रखना है। और अगर ट्राइंगल सिमिलर है आपके पास तो साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शन, विच मीन्स अब देखो कौन कौन सी साइड होंगी प्रोपोर्शन, AP अपॉन DQ आएगा इधर से, PO अपॉन QO आएगा, और तीसरी साइड क्या होगी AO अपॉन DO। समझ आया, दो ट्राइंगल सिमिलर थी, उनकी साइड्स प्रोपोर्शनलिटी में, सिमिलरिटी कंसेप्ट कहता है। अब इसको क्या देते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 में क्या देखा आपने, इन दोनों कंसेप्ट को यूज किया मैंने। देखिए आप सिंपली ये दोनों भी लिख सकते हैं, यू कैन एलिमिनेट दिस वन ऑल्सो। मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि तीनों साइड्स कैसे प्रोपोर्शन है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हुआ आपके पास, AP अपॉन DQ इधर भी है इधर भी है, तो रिप्लेस कर सकते हो आप। किया है हमने पिछली एक्सरसाइजेस में, फ्रॉम 1 एंड 2 एक साइड इक्वेशंस की इक्वल है, सो अदर साइड्स आर सपोज टू बी इक्वल। सो यहाँ से क्या आ गया, इसका LHS एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। क्या करो, AP अपॉन DQ की जगह क्या पुट कर सकते हो, AO अपॉन DO। क्या यही प्रूव कराया था आपसे, हाँ जी यही प्रूव कराया था, देखिए। सो दिस इज आवर रिजल्ट, हेंस प्रूव्ड। एक बार फिर से देखो फटाफट क्या किया, पहले मैंने एरिया का रेशियो निकाला, निकालने से मुझे पता चला कि ये तो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मैंने क्या किया, दोनों उन्हीं ट्राइंगल्स को लिया जिनमें ये दोनों रेलिवेंसी प्रूव हो रही थी, आपके पास रेलिवेंट बन रही थी, तो दोनों ट्राइंगल्स आपकी इजीली आपके पास सिमिलरिटी प्रूव होगी। सो साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन, पुट किया, दिस इज योर डिजायर्ड रिजल्ट। यू मे पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। अच्छा क्वेश्चन है ये। Question number 4 is, if area of two similar triangles are equal, prove that they are congruent। तो given है आपको दो triangles हैं जो already आपके पास similar हैं, उनका एरिया इक्वल है। आपको प्रूव करना है कि जो triangles हैं वो similar होने के साथ साथ congruent भी हैं। So let's take two triangles।
एक ट्राइंगल हमने लिया ABC, दूसरा ट्राइंगल हमने ले लिया PQR. Why I am making it like similar? Because थोड़ा कांग्रुएंसी प्रूव करना है तो मेक द फिगर सो दैट इट विल लुक लाइक कि हाँ ये कांग्रुएंट भी है. सो देखो गिवन है आपको सिमिलर है, सो सिमिलर है आपके पास तो साइड्स क्या होंगी प्रोपोर्शन में. सो सीधा सा लिख देते हैं हम ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. वाई? गिवन है आपको, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है आपको, गिवन है. सो साइड्स प्रोपोर्शन होंगी. AB किसके होगी? PQ के साथ, BC QR एंड AC अपॉन PR. ठीक है, होगी साइड प्रोपोर्शन. नाउ आपको गिवन है द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR. गिवन था आपको. चलो अब गिवन था बट वी नो दैट, क्या पता है आपको अभी जो हमने थ्योरम सीखी है, वी नो दैट एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होता है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड. चलो पता है आपको, कर दो पुट. यहाँ पे किसका होगा? AB अपॉन PQ का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू BC अपॉन QR का स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन PR का स्क्वायर. सबके इक्वल होगा, तीनों सेम ही चीज होंगी. अब फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करो आप, इक्वेशन 1 का यूज करते हुए PQR को ABC के इक्वल पुट कर दो, किसी को भी किसी के इक्वल पुट कर दो. सो क्या हो जाएगा? इक्वल है तो सेम अपॉन सेम इज इक्वल टू 1. एरिया ऑफ यहाँ पे नीचे आप PQR को ABC पुट करोगे, कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा. 1 इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का स्क्वायर. स्क्वायर है, स्क्वायर रूट भी लोगे दोनों तरफ, विल नॉट बी अफेक्टेड क्योंकि 1 है. तो यहाँ से AB किसके इक्वल आ गया? PQ के. सो यहाँ से सीधा लिख दो सिमिलरली. एक बार इस वाले को इक्वल 1 पुट कर दो तो सीधा लिख देते हैं हम, हर बार भी पुट करेंगे AC इज इक्वल टू PR. अब देखो तीनों साइड आपके कोरस्पॉन्डिंग, तीनों साइड्स के इक्वल आ गई. तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी? साइड 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 कांग्रुएंसी. कांग्रुएंसी क्या कहती है? तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए. तो हो गई ना इक्वल. देखो यहाँ से एक ये साइड, दूसरी ये थी, तीसरी ये थी, हो गई तीनों इक्वल. सो ट्राइंगल ABC आपकी कांग्रुएंट हो गई ट्राइंगल PQR. तो कैसे लिख दोगे आप? which implies triangle ABC is congruent to triangle PQR. If you can't see there, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया. वही congruent यही प्रूव करना था. कौन सी congruency? साइड साइड साइड. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती है. यू नीड टू मेंशन दैट, अदरवाइज एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि क्या यूज कर रहे हो आप. सो जब भी आप congruency लगाते हो, similarity लगाते हो, you need to write which property you are using. You may pause the video to write it down. So in question number 5, statement is there, figure is not given. तो आपको फिगर बनाना है पहले. So देखिए क्या given है. D, E, F are midpoints of sides AB, BC and CA respectively. ट्राइंगल ABC है जिसमें ये कंडीशन है कि D, E, F इन साइड्स के मिड पॉइंट है. आपको फाइंड करना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC. तो चलिए फिगर बनाते हैं सबसे पहले. So in figure, first thing I need to make is triangle ABC. सबसे पहले ट्राइंगल बनाते हैं. ABC ट्राइंगल प्लॉट करते हैं हम. ABC आपने ट्राइंगल लिया. सेकंड थिंग, D जो है वो मिड पॉइंट है AB साइड का. तो यहाँ पे मिड पॉइंट का मतलब यू नो दैट AD इज इक्वल टू BD. E मिड पॉइंट है BC का, यहाँ पे है E. और F मिड पॉइंट है CA का, यहाँ पे है F. अब ट्राइंगल DEF है तो इनको ज्वाइन करना पड़ेगा आपको. कीजिए ज्वाइन. ये बन गई ट्राइंगल DEF. तो आपको रेशियो निकालना है इस छोटी ट्राइंगल का अपॉन पूरी ट्राइंगल ABC का. सो देखिए कैसे करेंगे. हिंट कहाँ से लेंगे? हिंट लेंगे हम मिड पॉइंट से. देखिए मिड पॉइंट्स गिवन है आपको, और दूसरी चीज आपको गिवन है ABC ट्राइंगल का आपको एरिया चाहिए. तो मैं क्या करती हूँ, मैं कोई दो ट्राइंगल चूज करती हूँ रादर देन दिस. इसको छोड़ के
जैसे मैं लेती हूँ इन ट्राइंगल ABC, बड़ी ट्राइंगल अगर मैं लेती हूँ यहाँ से, सो वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट D and F are midpoints of sides AB and AC, ठीक है। DF दो साइड्स के मिड पॉइंट है। सो आपको याद होगा व्हेन वी डिड आवर बीपीटी प्रूफ, तो हमने क्या कहा था वहां पे, हमने क्वेश्चन किया था कि जिसको मैंने आपको बताया था, आई टोल्ड यू दैट वी विल यूज दिस एज अ रिजल्ट। थ्योरम प्रूफ की थी और उसका रिजल्ट यूज करेंगे। वहां पे हमने क्या प्रूफ किया था, वहां पे हमने बीपीटी का यूज करते हुए प्रूफ किया था इफ डी एंड एफ वर मिड पॉइंट्स, तो डी एफ पैरेलल हो गया था बीसी के, इफ यू रिमेम्बर दैट। अगर नहीं याद है तो आप वीडियो को देख लेना एक बार जाके। सो मिड पॉइंट थ्योरम जिसको हमने नाम दिया था, सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, आप फिर से करना चाहो कर सकते हो, बट दैट विल ओनली इलेबोरेट योर क्वेश्चन, बहुत लेंथी बना देगा। जब उसमें आप क्या करोगे, आप दो साइड्स का रेशियो लोगे, रेशियो लेके फिर आप क्या करोगे, वो आपके पास इक्वल आ जाएगा। तो आपको पता था जब आपका रेशियो प्रोपोर्शनेट हो तो ये साइड होती है पैरेलल, बीपीटी वाली स्टेटमेंट कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हमने प्रूव किया था। तो इसको हमने नाम दिया था बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो गया आपके पास, डी एफ पैरेलल हो गया बीसी के, डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर दिया मैंने। तो अगर ये पैरेलल है तो ये जो एंगल आपका बन रहा है ये किस एंगल के इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल ए डी एफ इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इन ट्राइंगल। बिफोर दैट आप मेंशन करो आप कौन सी दो ट्राइंगल ले रहे हो। सो मैंने ली है यहाँ पे इन ट्राइंगल ए डी एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी, ये छोटी ट्राइंगल और ये पूरी ट्राइंगल। सो यहाँ से एंगल ए डी एफ इज इक्वल टू एंगल ए बी सी बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग क्यों बने, क्योंकि साइड आपके पास पैरेलल प्रूव हो गई थी। सेकेंड इज ये वाला एंगल, एंगल ए एफ डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, अगेन कोरस्पॉन्डिंग एंगल है आपके पास। सो बाय एंगल एंगल, वैसे तो तीसरा एंगल कॉमन है बट नॉट रिक्वायर्ड, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से आपके पास ट्राइंगल ए डी एफ सिमिलर हो गई है ट्राइंगल ए बी सी के। सो अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या होगा आपके पास, इनका एरिया क्या हो जाएगा, साइड के प्रोपोर्शन। सो यहाँ से इन दोनों ट्राइंगल का एरिया अगर मैं लिखती हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए डी एफ की कौन सी साइड लूं मैं साइड ले लेती हूँ यहाँ से ए डी। वाई, बिकॉज आई नो ये मिड पॉइंट है तो ए डी और बी डी इक्वल होंगे। सो इधर से साइड है आपके पास ए बी, समझ आया। इस वाली ट्राइंगल की ए डी साइड, इस वाली की ए बी, विच इज इक्वल टू ए बी क्या है, ट्वाइस ऑफ ए डी है, या तो ऐसे लिख दो या ए डी को हाफ ऑफ ए बी लिख दो, एक ही बात आएगी, इसका स्क्वायर होता है आपके पास, सॉरी। ठीक है, तो ये क्या आ गया 1/4, इनका रेशियो क्या आ गया 1/4, यानी कि यहां से आप क्या कह सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एफ इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट वी हैव गॉट हेयर, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने यहां से निकाला है। जो एडीएफ ट्राइंगल है उसका एरिया एबीसी ट्राइंगल का 1/4 है। तो अब यहां से सिमिलरली आप क्या करो, सो यहां से आप दूसरी ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल एबीसी की तो लेनी है आपको, यहाँ पे हमने एडीएफ लिया था, अब आप ले लो बीडीई। बीडीई जब आप लोगे तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी। फिर तीसरे केस में आप सीएफई ले लो, ये ट्राइंगल, तो ये जो ईएफ है वो आपका एबी के पैरेलल हो जाएगा। सो हम वो सब नहीं करेंगे, हम सीधा लिख देंगे सिमिलरली एरिया ऑफ, सबका ऐसे ही सॉल्व होगा, आपको पता है सारे मिड पॉइंट है तो सबकी रेशियो भी सेम आएगी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई इज इक्वल टू, सीधा लिख देती हूँ
1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये तो वैल्यूज निकलेंगे आपके पास, और एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां से CEF इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। कैसे लिखा मैंने कि जैसे आपने ये एक ट्राइंगल बड़ी के साथ ली थी, इधर से छोटी पूरे के साथ लोगे, सब में वही केस रिपीट होगा। तो हम डायरेक्ट रिजल्ट यहां से लिख रहे हैं। तो डायरेक्ट रिजल्ट जब आप कर रहे हो तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे इन तीनों चीजों को, इक्वेशन 1, 2, 3, इन तीनों का आपने यूज करना है। नेमिंग कर दो, इसको कह दो इक्वेशन 2, इसको कह दो इक्वेशन 3। क्यों कर रहे हैं, क्या निकालना है हमने निकालना है इस ट्राइंगल का रेशियो बड़ी ट्राइंगल के साथ। तो एक बात बताओ, जस्ट इमेजिन इफ आई विल रिड्यूस द एरिया ऑफ दीज 3 ट्राइंगल फ्रॉम द ग्रेटर ट्राइंगल ABC, जो सबसे बड़ी ट्राइंगल है उसमें से अगर इन तीनों के एरिया का सम मैं रिड्यूस कर दूं तो लेफ्ट ओवर एरिया क्या बचेगा, DEF का। तो इस चीज को यहाँ पे यूज करना है। देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू, इसको निकालना आपने, क्या करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ इन तीनों का 1 + 2 + 3, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो। आप यहाँ पे ट्राइंगल्स के नाम लिखेंगे, मैंने सिर्फ इक्वेशंस को ऐड करे बिकॉज देयर इज अ लेस स्पेस। तीनों को ऐड कर दो, ये ट्राइंगल यानी कि इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इन तीनों का एरिया ऐड करके पूरी में से माइनस कर दो तो DEF का आ जाएगा। चलिए करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस, तीनों को ऐड करो, 1/4 ABC, 1/4 ABC, 1/4 ABC, यानी कि माइनस करेंगे आप, सॉरी आई हैव टू रिमूव योर पार्ट, क्योंकि ये मैं रिमूव कर रही हूँ यहाँ से। आप पॉज करके अपना नोट डाउन कर सकते हैं, तो देयर इज वेरी क्लमजी देयर। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF आपने निकाल दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तीनों इक्वेशंस को मैंने ऐड किया है उधर से। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस 1/4, 1/4, 1/4, तीनों को ऐड करोगे क्या बनेगा, 3/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। 1 - 1/3, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC यू कैन टेक इट कॉमन, इसको बाहर ले लो तो सिंपल है, आपके पास यहाँ पे फ्रैक्शन बचा है जिसको मैं सॉल्व कर रही हूँ। 1 - 1/3, 1 - 3/4, सॉरी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये क्या आ गया आपके पास, दैट केम आउट इक्वल 4 - 3, 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास ये। तो अब DEF का एरिया किसके इक्वल आ गया, 1/4 ABC के, पुट कर दो। फाइंड करना है जो एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। DEF का आपने निकाला है 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। देखो कट हो गया पूरा एरिया, क्या आ गया आंसर, 1/4। वेरी इजी, नो नॉट वेरी इजी। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 1/4, दिस इज योर आंसर। फिर से देखो क्या किया है, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किया है, इस ट्राइंगल का एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया निकालने के लिए। एक में ही निकालना है, बाकी तो आप सिमिलरली कर दो। फिर पूरी ट्राइंगल में से 3 छोटी ट्राइंगल को ऐड करके माइनस कर दिया, जो आपकी DEF बची है बीच में उसका एरिया आ गया, और फिर आपने पुट कर दिया। So you may pause the video to write it down. If you have any doubt, do let me know in comment section, please. So question number 6 is prove that the ratio of areas of 2 similar triangles is equal to the ratio of square of their medians. So देखो given है आपको triangles क्या है, similar है, तो let's take 2 triangles. Triangle हमने ले ली ABC, दूसरी ट्राइंगल हम ले लेते हैं ट्राइंगल PQR। ये ट्राइंगल सिमिलर है आपके पास,
सेकेंड थिंग है आपको प्रूव करना है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर मीडियन। तो चलिए मीडियन प्लॉट करते हैं, पॉइंट दे देते हैं डी, उसको पॉइंट क्या देते हैं एस, ये हो गई मीडियन। मीडियन आपको पता है जो यहाँ अपोजिट आपका मिड पॉइंट है उसी को आपने ज्वाइन करना होता है। सो डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी एंड एस इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। इसी तरह आप अदर साइड्स पे भी प्लॉट कर सकते हो, बट हम क्या करते हैं, हम एक पे ही प्रूव करके दिखा देते हैं, अदर्स विल बी बाय डिफॉल्ट सिमिलरली लिख देंगे। तो चलिए प्रूव करते हैं। गिवन है आपको ऑलरेडी ट्राइंगल ए बी सी जो है आपकी वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर। सो सिमिलर है तो साइड्स क्या होंगी प्रोपोर्शन में। सो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। दो साइड से ले रही हूं मैं बिकॉज वी हैव डन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। आपने पीछे किया था सिमिलैरिटी कंसेप्ट में भी, एक ये यूज किया मैंने। सेकेंड थिंग, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो एंगल्स क्या होंगे, एंगल्स आपके होते हैं इक्वल। एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। सो यहाँ से इस वाले में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करती हूँ, इसको नेमिंग करते हैं अपन ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर। कर सकते हो, यस, कट के वही रह जाता है। अब हाफ ऑफ बी सी क्या है आपके पास, बी डी, यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए ए डी इज ए डी एंड पी एस आर मीडियन। मीडियन है तो बाय डिफॉल्ट आपको पता ही चल गया मीडियन है तो डी क्या होगा आपका मिड पॉइंट। तो यहाँ से बी डी अपॉन क्यू एस, समझ आया, ठीक है। ए बी अपॉन पी क्यू इसके इक्वल आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। क्या थी वो प्रॉपर्टी, थी आपके पास अगर साइड्स आपकी दो साइड प्रोपोर्शन में है और उनके बीच का एक एंगल इक्वल हो तो ट्राइंगल्स होती है सिमिलर। सो बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एस, ठीक है। अगर ये इक्वल है तो साइड्स क्या होंगी प्रोपोर्शन में। सो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस होगी, हाँ जी होगी, यस, क्योंकि ट्राइंगल्स क्या है आपकी सिमिलर। इसको दे दो नाम थर्ड। सो वी नो, बट लिख देते हैं, बट वी नो एरिया क्या होता है आपके पास, एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, साइड के रेशियो की, बिकॉज दे आर ऑलरेडी सिमिलर। गिवन था आपको, देखो गिवन है ये ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो का स्क्वायर। हाँ जी, समझ आया आपको कैसे किया है? नहीं आया तो मुझे बता दीजिए, बिकॉज इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग हाउ आई विल कम टू नो आप लोगों को समझ आ रहा है या आपको नहीं आ रहा है। तो समझ आता है तब भी, नहीं आता है तब भी मुझे बताइए। ए बी अपॉन पी क्यू को आप क्या लिख सकते हो, यूजिंग इक्वेशन 3 ए डी अपॉन पी एस। सो यहां से ए डी अपॉन पी एस, यही तो प्रूव करवाया था, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर मीडियन। ए डी और पी एस क्या थी, मीडियन थी। देखो हो गया प्रूव, हो गया ना प्रूव आपके पास। सो इतना करने के बाद आप लिख दोगे सिमिलरली फॉर अदर मीडियंस, फॉर अदर मीडियंस रेशियो विल बी इक्वल, रेशियो विल बी इक्वल। हम क्लमजी नहीं बनाना चाहते, अदरवाइज देयर इज वन मोर मेथड। आप क्या करो, आप यहाँ से एक और मीडियन प्लॉट करो, यहाँ से एक और मीडियन प्लॉट करो, सिमिलरली यहाँ से दो मीडियन और प्लॉट करो, ठीक है, ऐसे। तो सब केस में इक्वल होगा। तो आप इतना ही कर दीजिए, बाकी आपका सिमिलरली काम कर देगा यहाँ पे। सो यू मे पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। सो क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा ट्रिकी है, बट इफ यू विल डू इट सीरियसली तो समझ भी आएगा आपको। प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। देखो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए एक स्क्वायर बनाते हैं। तो चलिए, दिस इज माय स्क्वायर ए बी सी डी, मैंने एक स्क्वायर लिया।
अब कह रहा है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जो इसकी एक साइड पे बनाई है, तो साइड BC के ऊपर मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया। इक्विलेटरल का मतलब है आपके पास, इसको नाम दे देते हैं P, यानी कि PC और PB और BC तीनों क्या है, इक्वल, और एंगल, ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। एक ये चीज है, आपको प्रूव करना है इस ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। अब पहले क्या करो, इसका एक डायगोनल ले लो, ठीक है। अब इस डायगोनल के ऊपर भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनानी है, यानी कि अब जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगी उसकी साइड क्या होंगी, AC के इक्वल। तो ये AD से, डायगोनल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स साइड स्क्वायर है, तो ये ऐसा कुछ बनेगा आपके पास। एंगल क्या होंगे सारे 60 डिग्री, इसको नाम दे देते हैं Q। समझ आया कैसे हुई है कंस्ट्रक्शन। AQC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, BPC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपके पास। सो अब यहां से आपको प्रूव करना है इस ट्राइंगल का एरिया इस बड़ी ट्राइंगल के एरिया का हाफ होगा। तो देखिए कैसे करते हैं, इन ट्राइंगल ACQ एंड ट्राइंगल ACQ ली है, उधर से आप ले लीजिए BCP। दोनों ट्राइंगल्स में सीधा लिख दीजिए, बल्कि ट्राइंगल ACQ सिमिलर है BCP के, वाई ईच एंगल इज 60 डिग्री। बीइंग इक्विलेटरल, आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर होती है तो 60 डिग्री का एंगल है, ये भी इक्विलेटरल, ये भी इक्विलेटरल। तो अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो कौन सी क्राइटेरिया लगा है, एंगल 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 सिमिलैरिटी। दोनों ट्राइंगल्स क्या होगी आपके पास, सिमिलर हो गई है। अब ट्राइंगल सिमिलर हैं तो साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शन में होंगी। सो प्रोपोर्शनलिटी से पहले आप एक बात बताओ, इफ यू नो दैट इफ स्क्वायर इज देयर, तो आप डायगोनल कैसे निकालते हो, यानी कि यहाँ से क्या है, AB BC CD AD चारों साइड्स क्या है आपके पास, इक्वल है। सो इक्वल है तो यहाँ से वन थिंग दैट यू नो इज AC इज इक्वल टू, AC को कैसे निकालते हो आप, यहाँ से ये एंगल क्या है 90 डिग्री का है, तो AC की लेंथ कैसे निकालोगे, पाइथागोरस क्या कहता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB और आपके पास BC इक्वल है तो इसको क्या लिख दो, BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि ट्वाइस ऑफ BC स्क्वायर। यही होता है आपके पास AC स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सो यहाँ से आपके पास AC जो निकला है वो क्या निकला आपके पास, √2 BC। AC की लेंथ आपने निकाल दी है √2 BC। सो आपने AC और BC के बीच रिलेशन निकाल दिया, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। अब यहां से आपको पता है क्या कि अगर साइड्स आपकी सिमिलर हैं तो एरिया कैसे निकालते हो, एज वी नो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCP इज इक्वल टू, तो कोर्स पर यहाँ से साइड क्या होगी AC, इधर से साइड ले लिया आपने BC, इनका स्क्वायर। अब AC को क्या पुट कर सकते हो आप, √2 BC अपॉन BC, बाहर स्क्वायर है कैंसिल, √2 का स्क्वायर हो गया 2। सो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल ACQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCP 2/1 आप लिख सकते हो। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यस यहाँ लिख रही हूँ मैं इसके बाद, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCP इज इक्वल टू, ये इधर गया ये इधर आ गया, 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ACQ। दिस इज माय डिजायर्ड रिजल्ट। यही प्रूव कराया था कि जो यहाँ पे ट्राइंगल बनी है ये एरिया इस पूरे ट्राइंगल का हाफ होगा। सो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मैं pause the video to write it down or to understand. If you still don't get it, do let me know in comment section. Question number 8 and 9 you will do by yourself. This is multiple choice question. That's all for today. Do it by your own. Students,
we didn't get enough relief in this chapter triangle from CBSE. Otherwise मुझे लगा था कि ये क्वेश्चंस कट होंगे, then chapter will be easy for you, but it didn't happen that way. That's okay. Just concentrate and do the questions. Definitely you will get it. So have a good day, students. Do it by your own. One more theorem that has been removed we will discuss tomorrow. That's all for today. Thank you, students.